Yes, guys, we are starting with Accounting Standard 12, Accounting for Government Grants. Accounting for Government Grants. Guys, here government means government. It could be central government, state government, local body, local authorities, panchayat. It's a government actually. ठीक है, मीन्स यू कैन टेक इट अदरवाइज, इसको और डिटेल में चलती हैं. गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. Income tax department, railways department, these are government departments. Similar bodies, whether local, which is part of government, as I told you, panchayat and local bodies. National or international, for example, WHO, UNESCO, UNICEF, International Monetary Fund, IMF, such kind of agencies, we consider them, the grant is called government grant. If the grant is given by Tatas or Birlas, that is not a government grant, that will not be covered under AS12. Government grant किस किस फॉर्म में हो सकती है? गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश और काइंड. गवर्नमेंट आपको लैंड दे सकती है फ्री में, है ना. दे आर सब्जेक्ट टू सर्टन conditions to be fulfilled before the grant or may be fulfilled in future compliance. ठीक है, conditional grant can be, you can give other names to the grant, for example subsidies, cash incentives, duty drawbacks. These are all government subsidies, government grants, government help. थोरेटिकली नहीं मजा आएगा, प्रैक्टिकली बहुत मजा आने वाला है. आप गवर्नमेंट ग्रांट को कब रिकॉग्नाइज करेंगे? सो यू विल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट ऑन एक्रूअल बेसिस, received or not received, but these two conditions, both these two conditions need to be fulfilled. It is expected that the enterprise will comply with the conditions attached to the grant and expected that the grant will be received. We will apply these rules practically. We have just read these rules. Theoretically, we will apply them practically and enjoy it a lot. Guys, we will keep this para pending. Else we will cover all the 7 points. Now I will need a help from Lakshay to read where to recognize government grant. These are 7 points. You have to remember these 7 points. Lakshay, point number 1, grant relating to fixed asset, non-depreciable fixed asset. I mean to say freehold land. In case you receive a government grant with regard to land, freehold land, how to account for the same? Don't read it now. I will give an example. You read it afterwards. What standard says? Standard says, point number 1, we will be covering point 1 to 7. We will be covering point 1 to 7. So point number 1, I adopt a base question from here which will be helpful to you. So I will adopt some base question from here. So I said this one. I said base question 3. Instead of creating a new question, we adopted base question 3 to explain point number 1. Lakshay, read base question 3. Now I will guide you. What will be my answer? I will guide you. Please listen. Please tell me what will be the entry when you will acquire land.
freehold land to bank. I cannot take example of leasehold land. Leasehold land will be written off in the life of the lease. I am talking about non-depreciable, so it is freehold land 10 lakhs. Agreed, guys? Agree to all. Done, guys. Now this is the first entry you have passed. Second entry, there will be two options. For second entry, you will be having two options. You call it two options or you call it two methods. ठीक है, two options, this or that. First option is when you will receive government grant. When you will receive government grant, you will get how much? 2 lakhs. I will be, while making you learn the base, I will making one entry. Later on, I will guide you. You can also make two entries. First of all, one entry. The first option is when you receive government grant, you will reduce the value of the asset. You will reduce the value of the asset by 2 lakhs. This is the one option. Okay. Easy. You received a grant, you got a land for 10 lakh and government has given you support of 2 lakhs. So your net cost will be 8 lakhs. It is sensible. Yeah, 10 minus 2, 9. How Sachin? Acha ji. Acha guys, second option is you got 2 lakhs. If you don't want to reduce land, freehold land, you can transfer this amount to capital reserve. So how many options are you having? Either, tell me again both options. First is you reduce the value of the asset. Second is to you transfer the amount to. Acha, I have recorded one entry. You can record two entries. Bank to government grant to freehold land. I am repeating, bank to government grant to capital reserve. You understood? While learning, make one entry only because it's easy. Or otherwise, in examination, you have to attempt just one question. Prefer to give a wider, better answer. Two entries. Plus, Lakshay, these are just base questions. We have to open CA module and see all the questions. You will understand it well. One or two. चलिए आगे चलते हैं. अच्छा guys, now I modify the question. Modified question. Now you have to tell me the answer. Modified question. I say the land is for 10 lakhs. You understood? Same question. Sir, same question. Land is for 10 lakhs. The government grant is for 10 lakhs. Full value की grant है. इस बार ग्रांट 2 lakhs की है क्या गवर्नमेंट ग्रांट 10 lakhs की है? तो आपके पास दो ऑप्शन नहीं मिलेंगी आपको. अब मैं आंसर दूं जो मैंने पिंक में लिखा. अब मैं आंसर दूं. आपने फ्री होल्ड लैंड लिया 10 lakhs की टू बैंक. 10 lakhs की टू बैंक. And second entry you will get only one option and that will be to reduce the land. You don't have option 2 not allowed, method 2 not permissible, method 2 not permissible. What was method 2? What you cannot do transfer to capital reserve. You have to reduce the value of the asset. ठीक है. When I will write here 10 lakhs, what will happen? The balance sheet will not show land as asset. Okay. Balance sheet will not show asset. So how the building is standing? Is the building standing in the air? No. So the better answer is you show the land at nominal value. You show the land at nominal value. How you will show the land at nominal value? You show it, for example, 9,99,900. 9,99,900. That way, beta 10 lakh or 9,99,900 means same na. It is nearly the same na. And you transfer to other incomes 100 rupees.
Doing so, what will happen? Land will continue to appear at rupees. Land will still continue to appear at rupees 100 nominal value. 100, 1, 10, 100, 500. This is just a nominal value. And you cannot use method 2. If the grant is nearly equal to the value of the land, in that case you have to use method 1 only. Method 1 only. Guys, any doubt? If doubt persist kare, see the recording again, but you need to be fully confident. Otherwise, clear, guys? Say yes. I feel yes. बेटा मैंने नहीं बनाया बेटा स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है बेटा। आपकी बड़ी सारी एडवाइजेस होती है ना, मेरी भी बहुत सारी एडवाइजेस हैं, लेकिन मैं तो स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूं ना बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन विड्रॉ हो गया बेटा। हाँ जी बेटा। और कहां डालेंगे बेटा? बेटा क्या कर सकते हैं बेटा? बेटा लॉ में नॉमिनल वैल्यू लिखा है, लॉ ने बताया नहीं नॉमिनल वैल्यू कितनी होती है बेटा, स्टैंडर्ड ने बताया नहीं बेटा। ठीक है जी, चलिए गाइस, द फर्स्ट point is over. We move to the second point. We are having 9 points to answer and this para is pending. अच्छा लक्ष्य, how you will feel confident कि सर ने सही बताया है? You have to read what is point 1. Please read. Point 1 वो वाला पैरा नहीं पढ़ना जो पेंडिंग है। ठीक है, ये एक मेथड हो गया, ये और है, तो इसका मतलब ये एक मेथड हो गया। हाँ जी, नीचे हाउ एवर, समझ गए? बेसिकली दे आर सेइंग कि शो एट मेथड 1, अडॉप्ट मेथड 1 एंड शो एट नॉमिनल वैल्यू। डन गाइस, वेरी क्लियर, डन। नेक्स्ट हम किसका एग्जांपल लेंगे? ग्रांट रिगार्डिंग depreciable fixed asset, grant regarding depreciable fixed asset, guys. So we go to point number 2. It's so knowledgeable यार, मजा आ जाता है। It is point number 2. So you understood what is point number 2. We have to cover 7 points. They are beautiful points. Point number 2, and we talk about base question. I feel base question 4 and 5 will do the help. So base question 4 and 5 will do the help. 4 and 5. 4 is regarding straight line method of depreciation, depreciable fixed asset. Remember please. And 5th may be regarding written down value method. And we begin. And smartly. Guys, Lakshay, read question number 4. They followed, चलो ठीक है, करेक्शन हो जाएगी, बट पर्पस एक ही है, SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके गाइस, डन बोथ मेथड्स। करें स्टार्ट। इजी इजी। सो वी गो टू नाउ बेस क्वेश्चन 4 and 5 to understand point number 2. First of all, base question 4. Now, please tell me in base question 4, what will be the first entry when you will acquire plant and machinery? To bank 10 lakhs. Now you will receive a government grant of 2 lakhs. So what will be the second entry? You will having two options. You will be having two options. This or this, method 1 or method 2, option 1 or option 2, two methods.
First method is when you get a grant, I will be recording one entry. You can pass two entries, bank to government grant and government grant to plant and machinery. You reduce the value of plant and machinery. Is it okay, guys? Is it okay? Yes. Alternatively, what option you have? You will be treating it as deferred income. You can not capital reserve. You will be treating as deferred government grant. Deferred government grant, 2 lakhs. Don't get confused. The answer will be the same. I will prove it. I will prove it. Now tell me, first year end. First year end. Please tell me what will be the depreciation. 10 lakh. 10 lakh minus 2 lakh. What is the value of the plant? 8 lakhs. And you remember the formula of SLM? You have done +1, you have done foundation, you have done many more qualification. So 8 lakhs minus scrap value divided by useful life 4 years. Please tell me the depreciation. So depreciation which will ultimately go to P&L account, you understand. The depreciation to plant and machinery will be on 10 lakhs or will be reduced to 8. Depreciation will be on 8 lakhs minus scrap value and divided by 4, 8 lakhs. So answer will be 1 lakh 75,000, and this entry will get repeated every year and will be transferred to P&L account. So year 2 same, year 3 and same, and will be transferred to P&L account. I am repeating, I am creating a base. I am not attempting a question in the examination presently. I am making you educated. Done, guys? Done? So means you will reduce the value of plant and machinery by government grant, and thereafter you will provide depreciation in the useful life. Okay. So what is the option 2 with you? What is the option 2 with you? Tell me what will be the depreciation first year end. What will be the depreciation? I tell you 10 lakhs minus scrap value upon 4 years. Why? Tell me the reason. Tell me the reason. एब्सोल्युटली इन्होंने कहा क्योंकि हमने प्लांट मशीनरी की वैल्यू 2 लाख से कम नहीं करी थी सर. आप समझ रहे हैं? आप गाइस समझ रहे हैं? तो ईयर एंड पे आप एंट्री पास करेंगे डेप्रीसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख. 2 लाख नहीं बोला आपने, कितना बोला आपने? 2 लाख 25,000. और आप एक एंट्री और करेंगे, एक एंट्री ये करेंगे. अच्छा, कितने साल में आप एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं? कितने साल में? तो उतने सालों में ही आप गवर्नमेंट ग्रांट को आप डेफर्ड इनकम मानेंगे. उतने सालों में ही आप गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड इनकम मानेंगे. तो इसका मतलब डेफर्ड ग्रांट का अकाउंट कम करेंगे और उसको आप P&L में ले जाएंगे. 50,000. देखना दोनों का नेट फैक्ट सेम आ रहा है जिसमें मैं टिक लगाने लगा हूं. आप बहुत इंटेलिजेंट है. ये भी P&L में जाएगा और यहां पर P&L डेबिट भी हो रहा है, P&L क्रेडिट भी हो रहा है, तो नेट फैक्ट सेम आ जाएगा सर. आ जाएगा. सो सेम टू एंट्रीज एट द एंड ऑफ year 2, 3, 4 full stop. Very easy, guys. Sir, very easy. Very good. Next guys, now question 4, base question 4 modified. बेस क्वेश्चन 4 मॉडिफाइड. ये मैं वो कह रहा हूं जो स्टैंडर्ड कह रहा है. बेटा प्लांट मशीनरी यू रिमेंबर 10 lakhs की थी. सर गवर्नमेंट ग्रांट भी 10 lakhs की होती तो क्या करते? तो यूज मेथड 1 ओनली. यूज मेथड 1 ओनली. ओके. यस. Entries would have been when you purchased plant and machinery for 10 lakhs, you will show as 10 lakhs.
Value receive government grant, you will pass the entry bank account debit 10 lakhs. You will show plant and machinery at nominal value. So 10 lakh minus 9 lakh 99,900. So you will show plant and machinery at nominal value. To miscellaneous income या other incomes. Is it very fine to all? नहीं पड़ेगा ना, डेप्रिसिएशन कहां से आएगी जब प्लांट की वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पे है पहले. डन हो गया, इजी. अभी एक क्वेश्चन पूछा था शायद अनुराग ने कि सर ऐसा क्यों. तो बेटा क्यों का रीजन ऐसा है कि मेरा मन करेगा तो मैं तो और भी बड़ी ऑप्शन सोचता हूं. अभी मैं अपनी ऑप्शन से नहीं पढ़ा रहा हूं. स्टैंडर्ड क्या चाहता है, अच्छा है बुरा है, वो आप अपनी इंटेलिजेंस से सोचकर डाउट्स में बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे उसकी. टाइम जाया होता है ऐसे. यस लक्ष्य, प्लीज रीड पॉइंट नंबर 2. Rational and systematic basis over useful life. However, fixed asset at nominal value. Done, guys. Concept is very clear to you all. Very good. Now we move further. And we say, let's do question number 5. Base question 5. Now I will be doing WDV method of depreciation. Here I will not teach you how the rate of depreciation is calculated, that is taught at CA foundation level. Neither I expect a question in the examination. How you derive the rate, I mean to say there was a formula, if everybody remembers, N scrap value upon original cost into 100. There used to be some formula and some other techniques to arrive at depreciation rate. We are not going to do so, that is not relevant here. So let's go to the question. Question says the plant is of 10 lakhs. Plant is of 10 lakhs, same value. Government grant 2 lakhs, same value. Life 4 years, same. Scrap value, same. But the method is and the rate of depreciation comes to 40 point something in method 1 and 43 point something in method 2. So let's arrive at the answer. Guys, I have taught you the accounting. Now I will not be teaching you accounting. Accounting I have done. Same entries, the amounts will change. So I will not teach you accounting. I will teach you the calculation part. Smartly, very smart people. Now मेथड 1 में क्या करते हैं आपको पता है? मेथड 1 में क्या करते हैं? यू शो द एसेट एट 10 lakhs और यू शो द एसेट एट 8 lakhs. Now tell me depreciation year 1. You know the rate of depreciation for, just a second, let me check the rate for your friends. 40.539. अगेन प्लीज 4 नहीं 3 2 यार, एक मिनट यार, 312 3,24,000. यार वो आप 312 कह रहे हो, वो 324 कह रहे हैं. बाय गॉड, 32. यार ऐसी बात भी नहीं है. गाइस यू एग्री ऑल? वी हैव टू सेव टाइम गाइस, ऐसा ना करें. अच्छा ठीक है, इजी है बेटा. बैलेंस बता दीजिए फटाफट नाउ.
688. Now depreciation year 2, WDV method, 192,839 rounded off, balance 8,849. Depreciation year 3, 1,146,664. Balance is 168,185. And depreciation in the year 4 will be 6,8,185 कह दूं अप्रोक्स, नहीं अप्रोक्स कह दूं, चलो 1 कह लो, 4 कह लो, जो भी कहना है, ठीक है। बैलेंस बैलेंस जो बच जाएगा वो स्क्रैप वैल्यू के आसपास बच जाएगा, 1,04,000. You understand, we have taken 3 decimal points in depreciation. If we could have taken 4-5 decimal points तो पॉसिबल होता कि ये आंसर एग्जैक्ट आ जाता 1 लाख स्क्रैप वैल्यू. आप समझ रहे हैं मेरी बात? Intelligence applies. The difference of 4 rupees is because of approximation. Depreciation will go to P&L in method 1 and you will say, sir, it is very easy. Now in method 2 versus method 2 versus method 2, method 2 के अंदर guys the depreciation will be on 10 lakhs. Yes. So depreciation year 1, the rate is 43. 1 minute. 43.765. 765%. हाँ जी guys. 437. The balance is 562,350. Next depreciation year 2, how 246,113. The balance 2 आएगा जी. मेजॉरिटी लक्ष्य कह रहे हैं 2 आएगा, प्लीज चेक करें. नहीं बेटा चलो बेटा, लक्ष्य बेटा चलो की बात नहीं है बेटा, आपका कैलकुलेटर अलग थोड़ी होगा. जो बात चलो की नहीं कर रहा हूं मैं, इट हैज टू बी. हाँ जी 4 है जी. ये क्या आ रहा है 2. 1 मिनट मैंने क्या लिखा, 562,350 इंटू 43.765%, इट इज 246,112 है यार. हाँ जी बैलेंस 238. Now depreciation year 3, 402. Next depreciation year 4, 177. 863. Now depreciation year 4, 830. Balance will be 1. एट सिक्स सिक्स. प्लीज यार चेक कर लीजिए. अब दोबारा देख लीजिए डेप्रीसिएशन. सो वो बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन है, उसमें हमारी कोई एरर नहीं है. गाइस समझ गए आप?
और आपको पता है आप डेफर्ड इनकम को कितने सालों में डेफर करोगे? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को जितने सालों में डेप्रीसिएशन प्रोवाइड की है, कितने सालों में डेप्रीसिएशन प्रोवाइड की है? डेप्रीसिएशन इक्वल प्रोवाइड किया है कि रिड्यूसिंग है? तो आप इस वेटेज में गवर्नमेंट ग्रांट को राइट ऑफ करोगे। सो राइट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, राइट ऑफ डेफर्ड ग्रांट in the ratio of depreciation, in the ratio of depreciation expense. I mean to say year 1, 2, 3, 4, year 1, 2, 3, 4, the weightage will be, the depreciation was 77830, the depreciation was 138402, the depreciation was 246,112. The depreciation was 437,437,650. Please add the amount. It should be 8,99,994. Please check it. इतना ही है। तो इस रेशियो में ये रेशियो बन जाएगी यहां से। अब मैं पूरा फॉर्मूला क्या लिखूं आप समझ गए। दिस डिवाइडेड बाय, जैसे पार्टनरशिप में आप पार्टनर ABCD 4321 की रेशियो में डिवाइड करते हो। अब बताइए गवर्नमेंट ग्रांट किस किस साल में कितनी कितनी जाएगी? टोटल विल बी 2 lakhs। एलोकेट इन दिस रेशियो which will go to P&L account as income, deferred income in the ratio of depreciation. आप चेक कर सकते हैं बाकी मेंबर्स भी। 97256, नेक्स्ट 54692, 645, अच्छा 45, सॉरी 45 कहा था आपने शायद। 4569 307 56 54 है, 54 है। एंड लास्ट गाइस, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है अभी तक, इसको डिफिकल्ट नहीं कहना। अच्छा, अब वो क्वेश्चन बनाने की जरूरत है कि जहां पर आपकी गवर्नमेंट ग्रांट इक्वल द वैल्यू ऑफ द एसेट हो, वहां पर सिर्फ मेथड 1 लगाना है, वो तो सीख चुके हैं। So that is not required. Now we go to the next point of the lecture. It's very, very important. It's very intelligent talk. Guys, grant relating to revenue. Grant relating to revenue. अभी तक आप देख रहे थे ग्रांट को आप कैपिटलाइज कर रहे थे। आपने देखा टेक्निकली आप ग्रांट को कैपिटलाइज कर रहे थे, कहीं एसेट से एडजस्ट कर रहे थे, बैलेंस शीट आइटम। अब आप ग्रांट को रेवेन्यू नेचर की ग्रांट मानेंगे, अब उसका एग्जांपल आएगा। सो वी कम टू पॉइंट नंबर 3। वी टेक बेस क्वेश्चन 1 and 2। सो वी टेक बेस क्वेश्चन 1। You know what is an income statement? You very well know. Please tell me which side the expenses will come, which side the sales will come. Guys, tell me. Credit side income statement. अच्छा, give me an example. बेटा मैं ना यूरिया, मेरी फैक्ट्री है यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बेचने की। मैंने बैग बेचना है 400 रुपए में, बट गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है, कंट्रोल्ड प्राइस। गवर्नमेंट कहती 300 में बेचो, तो बताओ इससे मेरा रेवेन्यू कम नहीं हो जाएगा? तो फिर मुझे 100 रुपए की सब्सिडी कहां से मिलेगी? गवर्नमेंट कहती हम देंगे, तो बताओ ये किस नेचर की ग्रांट हो गई? रेवेन्यू नेचर की। एग्जाम्पल क्लियर है? चलिए अगला एग्जाम्पल छोटा था, समझ आ गया। रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है तो मैंने इनकम बढ़ा दी। अच्छा, गवर्नमेंट कहती आप क्या बेचते हो? सोलर पैनल्स, जिससे बिजली प्रोड्यूस होगी।
तो मेरा एक सोलर पैनल का जो सेट है वो बिकता है 5 लाख का, ठीक है। इस मार्केट में इससे ज्यादा बेचूंगा तो कोई लेगा नहीं, मेरा एग्जांपल समझना। लेकिन मेरी कॉस्ट 6 लाख है, तो बताओ इससे जो गवर्नमेंट का एम है कि सोलर पैनल हर जगह लगने चाहिए, वो लग पाएंगे नहीं लग पाएंगे? गवर्नमेंट ने कहा हम आपको 1.5 लाख रुपए की आपकी परचेज के एंगेज सब्सिडी देंगे, आपको 1.5 लाख की आपकी परचेज के एंगेज सब्सिडी देंगे। तो बताओ क्या हुआ उससे? तो इसका मतलब रेवेन्यू नेचर की ग्रांट कई बार जैसे आपने सुना होगा कभी क्लास 11 में, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन सेल है, खर्चा ही है। इफ रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन कह दोगे तो ट्रेडिंग की आइटम बन जाती थी क्लास 11 में, रॉयल्टी ऑन सेल कह दोगे तो P&L की आइटम बन जाती थी, सुना हुआ ना आपने? हाँ, यहां पर गवर्नमेंट ग्रांट मिली है वो सच्ची बात है, रैकरिंग नेचर की है, रैकरिंग नेचर की है, रूटीन वाली आइटम के साथ है, रैकरिंग नेचर की है, ये भी सही बात है। इनकम पे बेस्ड है तो इनकम में ऐड कर लो, खर्चे के रिगार्डिंग है तो खर्चे को लेस कर लो, मतलब तो एक ही होता है बेटा, इजी। सो नाउ लेट्स डू बेस क्वेश्चन 1 and 2, you will say sir it is very easy. So a small example, this is not complete P&L, this is just an extract of income statement. Now I go to the standard what the wording says. चलिए वर्डिंग बाद में देखते हैं, पहले वो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो लक्ष्य प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा ये बताओ, ये गवर्नमेंट ग्रांट हमारी परचेज को, प्राइस को कम करने के लिए मिली है कि हमारी सेल्स को सपोर्ट करने के लिए मिली है? सेल्स को सपोर्ट करने के लिए मिली है। तो हम क्या करेंगे इस गवर्नमेंट ग्रांट को, हम इस 3 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट को हम अपनी इनकम में ऐड कर देंगे। सो बाय गवर्नमेंट ग्रांट 3 लाख, इजी इजी इजी। बेस क्वेश्चन 2, इस बार फिर से हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी, इनकम स्टेटमेंट, इस बार हमें फिर से गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी, तो देखेंगे हम क्या करते हैं। क्वेश्चन कहता है, हाँ जी पढ़िए। इस बार क्रेडिट में दिखाएं तो अच्छा अच्छा लगेगा कि डेबिट से लेस कर दें तो वो प्रेफर्ड है, लेकिन आप क्रेडिट में भी दिखा देंगे तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, ना ना वो गलत नहीं होता है, लेकिन डेबिट से लेस कर देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। सो कितना लिखूं, 15 lakhs माइनस 3 lakhs, इट विल बी 12 lakhs। सो क्रेडिट साइड में ऐड कर लो या डेबिट से लेस कर लो, आपके पास दो ऑप्शन है। एक एग्जांपल और, अनदर एग्जांपल। बेटा बेटा गवर्नमेंट ने आपको 3 साल की ग्रांट इकट्ठी दे दी है। आपने गवर्नमेंट ने आपको ईयर वन बिगनिंग में वो जो यूरिया के बैग्स थे ना, फर्टिलाइजर के बैग्स थे, गवर्नमेंट ने कहा कि आप कितने बैग बनाकर कितने बैग भर भर के बेचोगे फर्टिलाइजर के? हमने कहा जी 2 करोड़ बैग्स बेचेंगे। गवर्नमेंट ने 50 रुपए के हिसाब से हमें सब्सिडी पहले ही दे दी, 100 करोड़ की सब्सिडी पहले ही दे दी। हाँ ये, बट ये रेवेन्यू इनकम है, डेफर्ड बट रेवेन्यू इनकम है ना। और उसके बाद बैग्स बने कितने कितने हैं, ईयर 1 बिगनिंग बैग्स, BEG इज बिगनिंग, BAG इज बैग। अच्छा गाइस, अब बैग्स बने कितने हैं? सो हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई है? हमारी प्रोडक्शन हुई है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हमारी ईयर 1 में प्रोडक्शन हुई है 2 करोड़ बैग की सब्सिडी इकट्ठी आ गई थी, पहले साल में बने हैं 90 lakhs।
अगले साल में बने हैं 110 लैक्स। तीसरे साल में गवर्नमेंट कहते हैं जब जरूरत पड़ेगी तो और सब्सिडी मांग लेना, 2 साल की तो इकट्ठी आ ही गई है। तो बताओ जब पहले साल में 2 करोड़ आएगा तो इसको इनकम मानेंगे या डेफर्ड इनकम मानकर इसको 2 साल में डिवाइड करेंगे? हाँ, तो ये जो 2 करोड़, ये जो 100 करोड़ आया था, ये पी एंड एल में जाएगा ईयर 1 में, और ये पी एंड एल में जाएगा ईयर 2 में। ये रेवेन्यू नेचर की है, रैकरिंग नेचर की है, बट इकट्ठी आ गई है। तो हमने सिस्टमेटिक बेसिस पे, इंग्लिश का वर्ड सिस्टमेटिक, हमने कितना लिखूं, 55 करोड़, 45 45 करोड़, 55 करोड़ सिस्टमेटिक बेसिस। ये कहां लिखा हुआ है? वो लक्ष्य पढ़ेंगे अभी, ये लिखा होगा कहीं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते, कुछ स्टैंडर्ड कहेगा तो ही हम कहेंगे। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है जी, यहां लिखा हुआ है टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन पी एंड एल अकाउंट। ठीक कर रहे हैं हम। हमने कहा कि जिस साल में आ गई है उसी साल में दिखा दो कि ऑन सिस्टमेटिक बेसिस। मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया, ओवर द पीरियड टू मैच, ओवर द पीरियड टू मैच द रिलेटेड कॉस्ट। लॉजिकल बात की, क्या कर सकते हो, या अदर इनकम में ऐड कर सकते हो या खर्चे में से लेस कर सकते हो, ये भी सिखाया मैंने आपको। डन। अच्छा, अच्छा, ये जो पॉइंट नंबर 1 और 2 था ना, ये ग्रांट किसी पर्टिकुलर एसेट के एंगेंस्ट थी, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट के एंगेंस्ट वाला था। अब गवर्नमेंट ग्रांट पूरे प्रोजेक्ट के एंगेंस्ट मिल रही है। किसके एंगेंस्ट मिल रही है? प्रोजेक्ट के अंदर लैंड भी आ जाएगा, बिल्डिंग भी आ जाएगी, प्लांट मशीनरी भी आ जाएगी। तो किसमें से लेस करोगे? किसी में से भी नहीं लेस करोगे। आप ना मेथड 1 फॉलो करोगे ना मेथड 2 फॉलो करोगे, जो ऊपर सीखकर आए थे लैंड के लिए और मशीनरी के लिए, कोई भी नहीं फॉलो करोगे। जहां पर आपको प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट आई है, उसको आप पता क्या बोलोगे? आप बोलोगे ग्रांट इन द नेचर ऑफ, हाँ, इसको इसको नाम दिया गया है। गवर्नमेंट कहती कितना लगाते हो, 5 करोड़, हम भी आपको 1 करोड़ देंगे। आप लगाओ 5 करोड़, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, हम भी आपको 1 करोड़ देंगे। गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर एसेट के एंगेंस्ट दिया है कि प्रोजेक्ट के एंगेंस्ट दिया है? इसको आप कैपिटल रिजर्व में लेकर जाएंगे, और आप सबको पता है कैपिटल रिजर्व जो होता है वहां से ना डिविडेंड दे सकते हैं, ना उसको डेफर्ड इनकम कहकर पी एंड एल में लेकर आ सकते हैं। पता ना आपको, सिखा दिया पॉइंट। पढ़िए प्लीज। दिस इज वेरी इजी नाउ। फिर भी आप कहते हैं कौन सा बेस क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, तो मैंने कहा बेस क्वेश्चन कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ना जी। अब बताओ, अब बताओ, जब गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो अंगेंस्ट पर्टिकुलर एसेट मिली है कि प्रोजेक्ट के अंगेंस्ट मिली है? तो उस केस में जब आपको 10 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी, जब आपको 10 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी, यस, तो हमने कहा पॉइंट नंबर 4, हमने कहा बेस क्वेश्चन, कौन सा था बेस क्वेश्चन? नंबर 6। हमने कहा एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। दो एंट्रियां बनानी हो तो बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व 10 लैक्स। 10 लैक्स था, पता नहीं कितना था, 1 करोड़ था, देख लेते हैं। 10 लैक्स था। ठीक है जी, तो ये आंसर आ गया फॉर, इट विल बी ट्रीटेड एज लाइक प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। नाउ पॉइंट नंबर 5 and 6 आर वेरी इजी, too easy. Easiest ones are point number 5 and 6. Now this time the grant is monetary grant, कैश में मिल रही है कि नॉन मॉनेटरी एसेट मिल रहा है? नॉन मॉनेटरी एसेट हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, लैंड मिल रहा है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से आपको लैंड दे दी, और लैंड दिया कंसेशनल रेट पे। जो लैंड 100 रुपए की थी आपको 20 में मिल गई, छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, 100 वाली 20 में मिल गई,
तो किस पे रिकॉर्ड करोगे? जिस पे मिली है कि 100 पे, मार्केट वैल्यू पे? जिस पे मिली है। पढ़ना जी। हाँ 20 पे दिखाओगे। नेक्स्ट, इफ गवर्नमेंट ने आपको स्कूल के लिए लैंड फ्री में दे दी तो किस पे दिखाओगे? नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है जी, बड़ा इजी पॉइंट है। आइए, इजी पॉइंट है तो इसको हैंडल करते हैं। हमने कहा 0.5 एंड 0.6, 0.5 एंड 0.6। हमने कहा 0.5 बेस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 7, 0.6 पढ़ लेते हैं बेस क्वेश्चन 8। हमने कहा बेस क्वेश्चन 7, हमने कहा बेस क्वेश्चन 7। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं है, ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बनाए जाते हैं। बेटा यहां पर हमें स्कूल मिला है, स्कूल के लिए लैंड है जो हमने खरीदी है, कितने में? हमें गवर्नमेंट से मिली है, फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमें स्कूल के लिए लैंड गवर्नमेंट से मिली है, कितने में मिल गई है? 80 लैक्स। वैसे इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 करोड़। तो बताओ कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? कंसेशनल रेट पे 80 लाख पे। तो हम एंट्री पास कर देंगे लैंड टू बैंक 80 लैक्स, लैंड टू बैंक 80 लैक्स। नेक्स्ट केस, बेस क्वेश्चन 8। हाँ अभी देखते हैं। आप कह रहे हो फ्री में मिली है, आपने कहा स्कूल के लिए लैंड थी, फ्री में मिल गई है। वैसे मार्केट वैल्यू 50 लैक्स है, कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? फ्री में मिल गई है, फ्री में मिल गई है तो रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी ना, वरना बैलेंस शीट में लैंड आएगी नहीं। टू अदर इनकम्स 100 रुपए। सो ये 0.7 पॉइंट्स हैं, बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। पहला पॉइंट था गवर्नमेंट ग्रांट किसके रिगार्डिंग थी? हम बात कर रहे थे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। सेकंड पॉइंट था डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट। पहला था नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट। थर्ड था रेकरिंग नेचर की ग्रांट, रेवेन्यू नेचर की ग्रांट। ठीक है, पॉइंट्स याद करेंगे आप। फोर्थ था जब प्रोजेक्ट के एंगेज मिलती है तो नेचर ऑफ कैपिटल, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। फिफ्थ एंड सिक्स्थ है जब आपको नॉन मॉनिटरी ग्रांट मिली है, यहां कंसेशनल रेट पे या फ्री में। अब आ गया पॉइंट नंबर 7। नाउ पॉइंट नंबर 7, रेड विथ बेस क्वेश्चन 9। तो इसको सिखाना हो तो बेस क्वेश्चन 9 पढ़ना पड़ेगा, अपने आप ही समझ आ जाएगा पॉइंट कितना मजेदार है, कमाल है पॉइंट। हाँ जी, आप पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ें लक्ष्य। अब आप क्या बताओ, ये नई फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट है, नई लैंड एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट है, कि बस कंपनी लॉसेस में थी, उससे क्या होना था? अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ अब बस गवर्नमेंट ने एक एड दे दी है आपको, फाइनेंशियल एड, ये भी तो ग्रांट हो गई। तो इसको आप पीएनएल में लेकर जाएंगे, ना डेफर करेंगे, ना कैपिटल रिजर्व में लेकर जाएंगे, ना एसेट में से कम करेंगे। इसको आप पीएनएल में ले जाएंगे उसी साल में पूरी की पूरी, एज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है गाइस, तो हमने इसका आंसर दिया, हमने किया। ठीक है, 100% विल बी ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। डन गाइस। सो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी एड दे सकती है, वो फार्मर हो या कोई इंडस्ट्री हो। तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एड मिली, हमने वो एग्जाम्पल बनाया। अब आप कहेंगे ये वर्डिंग, स्टैंडर्ड की वर्डिंग क्या थी? ये तो आपका बेस क्वेश्चन था, तो हम स्टैंडर्ड की वर्डिंग देखते हैं। स्टैंडर्ड क्या कहता है 7th पॉइंट के रिगार्डिंग, पढ़ना जी।
हाँ, तो ये हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान ही लेते हैं, तो इफ लिखा हुआ है बट हमें पता है कि मान ही लेते हैं, तो मैंने डाउट ही नहीं किया, मैंने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नाउ लास्ट पॉइंट, 2 मिनट का पॉइंट है और आज का टारगेट अचीव हो जाएगा। ये जो पैरा पेंडिंग छोड़ा था उसका रिप्लाई बताइए। जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी फ्री हो लैंड के अगेंस्ट, याद रखना, तो आपने मेथड 1 था कि एसेट में से लेस कर दो, याद करना, ठीक है। मेथड 2 था कि कैपिटल रिजर्व में ले जाओ, डन डन। डेफर्ड इनकम की ऑप्शन नहीं दी थी आपको मैंने, एक्सेप्शन, अब मैं डेफर्ड इनकम की ऑप्शन दे रहा हूं, डेफर्ड इनकम की ऑप्शन दे रहा हूं, दूं, सुनो सुनो, उसके लिए एग्जाम्पल बनाओ। हम कौन सा पॉइंट कवर कर रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं पॉइंट 1 एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू पॉइंट 1, यही कवर कर रहे हैं ना, एक्सेप्शन टू पॉइंट 1। मेरी बात समझना, ये हिली एरिया है, ये हिली एरिया है, यहां पर कोई एक प्लॉट है या ये एक है वो डिमार्केटेड एरिया, ये वाला कोई एरिया है, इधर इधर कोई प्रॉब्लम है लैंड के साथ या वो है खाई है या कुछ है, गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये लैंड खरीद लो 1 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू के हिसाब से, हम आपको इसके अगेंस्ट 20 लाख की सब्सिडी देंगे, 20 लाख गवर्नमेंट ग्रांट देंगे। मिल गई गवर्नमेंट ग्रांट, लैंड के अगेंस्ट मिली है, ठीक है। मार्केट वैल्यू लैंड की 1 करोड़ है और आपने खरीदी है। तो मैं मेथड 1 तो आपको आता ही है, मैं मेथड 1 नहीं सिखा रहा हूं, मैं मेथड 2 सिखा रहा हूं। मेथड 1 तो आपको आता ही है, मेथड 1 में आपने क्या सीखा था, आपने कहा था लैंड 1 करोड़ टू बैंक 1 करोड़, और जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो आपने लैंड की वैल्यू कम कर दी 20 लाख से, डन। गवर्नमेंट ने कहा कि यहां पर आपको ये एरिया मेंटेन करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट एरिया, ये गवर्नमेंट एरिया है, उसकी मेंटेनेंस फ्री में करनी पड़ेगी अगले 10 साल, ये गवर्नमेंट एरिया है, ठीक है, इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। आप जब ये लैंड खरीदोगे तो हम आपको ग्रांट देंगे, लेकिन आपको इस एरिया की मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट करनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट एरिया है जहां से पब्लिक निकलती है। अच्छा, आपको पता है चंडीगढ़ में जितने भी राउंड अबाउट्स हैं, वहां पर मैं ये एग्जांपल नहीं बना रहा हूं बट वैसे जनरली बात कर रहा हूं, आपको पता है प्रमोशन के लिए हर राउंड अबाउट पे किसी ना किसी बिजनेस एंटिटी का बोर्ड लगा हुआ है, if आपको ध्यान हो तो। सर इतना बड़ा राउंड अबाउट जिसमें 2 माली चाहिए मेंटेन करने के लिए, इनकी मेंटेनेंस कौन दे रहा होगा, सोच के बताओ, गवर्नमेंट का खर्चा है कि कंपनी कर रही होगी। तो तो गवर्नमेंट बड़ी चालाक है, गवर्नमेंट कहती है गवर्नमेंट का खर्चा बच गया, बंदे की प्रमोशन हो गई उसके बिजनेस की, और चंडीगढ़ ब्यूटीफुल हो गया। तो ये तो हर एक का नाम लिखवा लिखवा के, और ये ऐसा नहीं है, ये मंदिर और रिलीजियस प्लेसेस भी करती हैं, वो कहती जी इतनी डोनेशन दो, आपका नाम ऐसे लिखेंगे, आपका, आपके फादर का, ग्रैंडफादर का, सो का सो का, ठीक है। ये तो ठीक है, चलता है यार, चलता है, इसमें नुकसान किसका हो रहा है, फंड ही आ रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है। अच्छा ये बताओ, इफ ये वाला एग्जांपल हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अब कैपिटल रिजर्व में लेके जाने की जरूरत नहीं है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डेफर्ड इनकम मान सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेन करना है फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। तो बताओ, गवर्नमेंट मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ नहीं यार, फ्री ऑफ कॉस्ट ना कहूं ना, मेंटेनेंस टू बी डन बाय द बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट एरिया फॉर 10 ईयर्स, मेंटेनेंस टू बी डन बाय, टू बी डन बाय लैंड ओनर, गवर्नमेंट एरिया का ये जो लैंड ओनर है ये खर्चा करेगा। बताओ उस केस में इफ खर्चा पीएनएल में जा रहा है तो पर गवर्नमेंट ने ये कंडीशन क्यों लगाई है मेंटेनेंस की, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है ना हमें कुछ, तो अपना हक बना लेती है गवर्नमेंट, है ना। तो इस बार बताओ, इस बार हम इसको डेफर्ड इनकम मान लें कि ना मान लें, मान सकते हैं, इसका मतलब पहली एंट्री आ गई लैंड टू बैंक 1 करोड़,
और अगली एंट्री आ गई बैंक टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 20 lakhs. हाँ, टू बी रिटर्न ऑफ इन से 10 years. ठीक है जी, ये वो एक्सेप्शन है जो पॉइंट नंबर 1 के साथ लिखी हुई है. अब वो पढ़ते हैं और क्लास एंड हो जाएगी. और इसको आप कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे. मुझे कोई डाउट की उम्मीद तक नहीं है. डाउट नहीं आना चाहिए. रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं बेशक. ठीक है अनुराग जी, आप भी. गाइस प्लीज रीड पॉइंट नंबर 1. ये however अपोर्शनमेंट टू पी एंड एल अकाउंट. आप समझ गए बेटा? डेफर्ड इनकम का मतलब समझ गए? इफ 2 लाख आप पहले साल में राइट ऑफ कर रहे हो तो बाकी 18 लाख तो बैलेंस शीट में कहीं दिखाओगे ना. ओवर द years राइट ऑफ करोगे ना. सो द डेफर्ड इनकम इज suitably disclosed in the balance sheet pending its apportionment to P&L account over the span. Done guys. So this is something very beautiful and very knowledgeable. So this lecture gets over.